Good morning, students. Today we will continue with the lesson Glimpse of the Past, unit number 3. Yesterday we have talked how the English East India Company came to India for trade, but with its superior weapons, it extended its power in the 18th century in India. They imposed heavy taxes on the farmers. They sent many farmers to jail for failing to pay their tax. They destroyed the local Indian industries in order to sell goods manufactured in England. Now today we will see remaining pictorials. Now we will discuss pictorial number 4, Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let's not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो हमारे लोगों को, इंडियन को समझा रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब हमें अवेयर होने की ज़रूरत है. अब हम इंडियन को, हिंदू को सुपरस्टिशन से दूर भागना है, नहीं तो ये अंग्रेज लोग हैं वो हमें र्यून कर देंगे. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different colors but the colors of their milk is the same. राम मोहन रॉय जो है वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि काउस डिफरेंट कलर की होती है बट उनका जो मिल्क होता है सब काउस का मिल्क सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. हियर राम मोहन रॉय टोल्ड दैट he called upon the people to fight against social evils. He also asked the people to discard all superstitions. He asked them to feel proud to their culture and learn English. क्या बोल रहे हैं राम मोहन रॉय कि हमें अपने कल्चर पे प्राउड फील करना चाहिए और इंग्लिश सीखना चाहिए. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. राम मोहन रॉय हैं वो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि अगर हम में नॉलेज होगा तो ही हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से, हमारे देश में से भगा पाएंगे. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823. अब राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे. उन्होंने अपनी देश के लोगों को, अपने कंट्री मैन को अवेयर करने के लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. बट ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि अगर हिंदू हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे तो वो हमें यहाँ से भगा देंगे. सो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, दे स्टॉप्ड देम इन 1823. जो न्यूज़पेपर राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 1823 में वो न्यूज़पेपर स्टॉप कर दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. फिर क्या किया, तो राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रिटेन, इंग्लैंड गए देखने के लिए कि ऐसा तो क्या है वहाँ पे जिनसे ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं. We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. Then alone they would be able to write the British Parliament for a fair deal. उन्होंने उनके साथ एक डील की. Here he said we accept you as a rulers. हम आपको एक रूलर्स के जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं and you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. He crossed the seas and went to England to see what made the British so powerful. He then adopted the middle path. Now, pictorial number 5, Operation, which was occurred between 1765 to 1835. ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों दबाना. फिर क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने, जो हिंदू थे, हम लोग थे, हमें दबाना शुरू किया. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. उन्होंने इंडियन को दबाना जारी रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट.
फिर क्या हुआ बच्चों, तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन पास किया, रेगुलेशन नंबर 3. नाउ व्हाट इज दिस रेगुलेशन नंबर 3? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू. In 1818, the British had passed Regulation 3. Now, under this regulation, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. फिर क्या हुआ, तो हमेशा ही ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दी एंड अपना प्राइवेट बिजनेस था वो क्या किया, बढ़ा दिया. बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. एंड बच्चों आज से 200 साल पहले की बात है, 200 ईयर्स पहले की बात है, 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. तब की बात है, तब उन्होंने इंडिया में 7 करोड़ रुपीज़ जो थे इतना माल, 7 करोड़ रुपीज़ का माल क्या किया था, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉस्परस होने लगे, आगे बढ़ने लगे, रीच होने लगे, अमीर बनने लगे. एंड हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी. यहाँ पे जो जनरल बेंटिक है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, this is General Bentinck, and he said the bonds of cotton weavers are bleaching the plains of India. यहाँ पे वो बोल रहे कि हमें इंडियन लोगों को है वो ख़त्म करना है, उनकी इंडस्ट्रीज है डिस्ट्रॉय करनी है. इसलिए अब ये जो मजदूर हैं इन सब की हड्डियाँ दिखने लगी हैं. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नाउ Pictorial number 6, dissatisfaction. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. Now, तब 1835 to 1856 में हमारे इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन एंड संस्कृत में था. बट 1835 में इंग्लिश मैन था जिसका नाम मैकोले था, उन्होंने एक सजेशन दिया, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ मैकोले. व्हाट डिड ही से? ही सेड नाउ वी शुड स्टार्ट एंड वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें ये जो इंडियन है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करना चाहिए, क्योंकि अब हमें स्टेप टू स्टेप हमेशा इंडियंस की ज़रूरत पड़ेगी. हमारे घर पे जो सर्वेंट होंगे, फिर हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको सबको हिंदी आती है लैंग्वेज. सो हमें इनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. फिर जब उन्होंने इंग्लिश टीचिंग स्टार्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करना शुरू किया, तो उनसे क्या हुआ, तो उससे हमारी जो नई जनरेशन थी वो भी इंटेलेक्चुअल बनी, नॉलेजेबल बनी. वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. फिर हमारे जो हिंदूज थे, इंडियंस थे, वो एक दूसरे से क्या बातें करने लगे. हियर यू कैन सी दे वर टॉकिंग. वन मैन से वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. किसी ने कहा कि हमें हमारे भाइयों को एजुकेट करना पड़ेगा. देन अनदर वन सेड एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस. और हमें उनकी मटीरियल कंडीशंस इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. फिर जो दूसरा पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंप्लेन करनी चाहिए. हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंसेस मीन्स कंप्लेंट्स.
By 1856, the British had conquered the whole of India. Here, when we started this lesson, I have told you, यहाँ पे जो पिंक कलर पार्ट है बच्चों, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर. सो स्टार्टिंग में जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ओनली थोड़ा सा ही पार्ट जो था वो पिंक कलर का था. धीरे धीरे बाय 1835 and by 1856 they had conquered the whole of India. उन्होंने क्या किया तो इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उन्होंने जीत लिया. They cared little about the needs of Indian. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. फिर जो हमारे हिंदू लोग थे, जिनको हमारे जो राजा थे उनकी कदर नहीं थी, धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ. दे हैड रियलाइज्ड एंड दे टोल्ड कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. फिर इन्होंने वो अंदर बातें कर रहे थे कि अब हमने हमारी जॉब भी गंवा दी है एंड लैंड्स. एंड अनदर मैन सेड वी हैव लॉस्ट आवर लैंड्स ऑल्सो. They are converting our brothers. Another one said कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं. Here converting our brother means हमारे जो भाई हैं उनका रिलीजियन भी वो लोग चेंज करवा रहे हैं. You only do something to drive them out. फिर यहाँ पे जो ये इंसान है वो क्या बोल रहा है कि आप लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे, आप कुछ करने वाले नहीं हो. अच्छा है कि आप ऐसा कुछ करो कि उनको ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दो. रिमेनिंग पिक्टोरियल्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पीरियड. टिल देन बाय एवरीवन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.